Write down. Okay, understood. Again, I will explain you this problem. See here, what is given here. If the area of a rectangular field is 21x square minus 7x and one of its side is 7x, so what is the other side? So you know the formula to find the area of rectangle, that is area is equal to length into breadth. Area is given, that is 21x square minus 7x, and one of the sides, suppose length is given 7x, you have to find the breadth. Okay, so b will be equals to, this number remains as it is and you have to divide by 7x. So 21x square minus 7x divided by 7x. Okay, so among these two terms, so 7x is the common, so take out 7x as a common, and remaining number that you have to write inside the bracket, that is 3x minus 1. If you multiply this number, then you can get the same, this one. Okay, if you use distributive property, so you can get this one, 21x square minus 7x as it is. Now 7x gets cancelled and remaining number, that is the breadth. Okay, so write down this. Over. Hello. Yes, sir. Okay, No good. sir, no sir. Sir, wait. Sir, will you please explain it again? Sir, एक बार फिर से बताओ ना. Okay. Okay, see here. What is given in this question? Area and one of the side is given. Area is this one. If you read the problem, area is given and one of the side of the rectangular field is also given. You have to find the other side. मतलब समझो आप B find करना है, breadth find करना है. Okay. So you have to write the formula to find the area of rectangle. Area of rectangle is equal to length into breadth. Okay, area is given, that you have to put here, length is given, that also you have to put here, and you have to find the one of the side, मतलब समझो b find करना है, breadth find करना है आपको. So b is equal to क्या होगा, ये as it is रहेगा और ये नंबर डिवाइड में आता, जो इनटू में है वो डिवाइड में आता, आपको पता है. ओके, तो मैंने इसको डिवाइड में लिखा, इसकी इस नंबर के डिवाइड में लिखा, देखो. ओके, अंडरस्टूड. हेलो. Yes, sir. Okay. Yes, Now sir. here you have to take out 7x as a common. देखो 7 इसमें भी है, इसमें भी है. 7 3 21 होता है, मतलब 7 यहाँ पर भी है. ओके, और x स्क्वायर है, यहाँ x है, तो कम से कम पावर निकालना है आपको बाहर. मैंने उसी दिन आपको बताया था. तो 7x कॉमन निकलेगा, तो यहाँ से 7x निकला तो क्या रहेगा ब्रैकेट में, 21 आने के लिए 7 3 3 रहेगा. एक x निकला है तो एक x बाकी है, वो भी रहेगा अंदर. ठीक है, और यहां से पूरा की पूरा 7x निकला तो यहाँ कुछ भी नहीं, मतलब 1 रहेगा. अगर आप इसे इंटू करते हो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से, सो 7 3 21, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर आ गया 21x स्क्वायर, माइनस का माइनस, 7x 1 जार 7x. ओके, एज इट इज है. अब यहाँ पर 7x गेट्स कैंसल एंड दिस नंबर इज द आंसर 3x minus 1 एज इट इज. यू हैव टू राइट हियर. सो दिस इज द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड. ओके, राइट डाउन. Yes, sir. Now the last question, that is see here, if a train travels 30a square plus 15a minus 10 kilometers in 10 hours, so what is the average speed? What you have to find here? Average speed means you have to divide this 30a square plus 15a minus 10 divided by 10. Distance pattern. ओके, एवरेज स्पीड फाइंड करना मतलब आपको क्या करना है, इससे डिवाइड करना है इसको. सो टेक आउट, क्या कॉमन निकलेगा, 10 कॉमन निकलता क्या? हाँ सर, 10. 5 कॉमन निकलेगा, 5 10, कॉमन 10. निकलता, हाँ सर, 5. 5 कॉमन निकलेगा. हाँ सर. हाँ, 5. सो टेक आउट 5 एज अ कॉमन. सर एक मिनट रुको सर. टेक आउट 5 एज अ कॉमन. सो व्हाट यू कैन गेट हियर? सर रुको ना. 5 कॉमन निकालेंगे तो सॉल्व कर रहे हैं आप? हेलो, did you get the answer? No sir. सर, हेलो सर. हाँ, बोलो. My voice is coming sir. हाँ, My voice is coming. हाँ, yes.
Hello. See here. So average speed is equal to, write down. Average speed is equal to and a distance by time. This is the formula. Okay, this is the formula to find the speed. So average speed is equal to 30a square plus 15a सर वो ऊपर क्या लिखा है आपने? distance Minus upon 10. time. सर माइनस है, टाइम सर माइनस है, टाइम के ऊपर 15 क्या के लिखा बाद माइनस है। Minus 10. Okay, very good. Minus सर 10 टाइम divided के by ऊपर क्या लिखा है आपने? time is 10. Okay. डिस्टेंस है, Distance, Achha, how many? distance. That is this one. Distance is given. That is 30a square plus 15a minus 10 divided by 10. So take out 5 as a common. अगर आप इसका HCF भी निकालते हो तो आपको 5 कॉमन मिल जाएगा. वो नेक्स्ट आगे है, इससे आगे है. ठीक है, वो जब पढ़ाएंगे तब बताऊंगा आपको. तो टेक आउट 5 एज अ कॉमन. यू कैन गेट 6 जार 5 6 जार 30. ओके, 5 into 6 30 होता है. ए स्क्वायर यहाँ लिखना पड़ेगा आपको प्लस 5 15 आने के लिए 5 3 जार 3 माइनस 3a ए चाहिए, सॉरी ए माइनस 5 10 आने के लिए 2. 5 2 जार. So divided by 10. So 5 1 the 5 5 2 जार 10 means you can get here 6a square plus 3a minus 2 divided by these 2. 2. ओके, आप इसको एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. इसके आगे और भी सॉल्व होता है. सो ये भी आंसर है आपका. ठीक है, या फिर 2 इज डिविजिबल टू दिस 3 टर्म 1 2 3 3 टर्म है, तीनों को डिवाइड है. हाँ. मतलब ये भी नंबर इससे डिवाइड होता है, ये भी है, ये भी है. तो आप तीनों को सेपरेट लिख सकते हो. 6a स्क्वायर बाय 2 ऐसा लिख सकते, प्लस 3a बाय 2 माइनस 2 बाय 2. मतलब तीनों को 2 डिवाइड है. ये दिख रहा है आपको? हाँ Hello? सर. हाँ. हाँ, Now sir. see here 6a square by 2 plus 3a by 2 minus 2 by 2. सब समझो, इसे सॉल्व करेंगे. So all denominators are same. So denominator remains as it is and you have to add only the numerator. So you can get this step again. इसे सॉल्व करेंगे तो ये स्टेप मिलने वाली है. आप इस तरह के प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं. जैसे 5 by 2 plus 7 by 2 रहा तो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर remains as it is और दोनों की एडिशन कर लेते हैं. 5 plus 7 करते हैं ना. 12. So I say denominator remains as it is and you have to add the numerator. So now see here, the next step is what? If you solve this one, तो ये करता है 2 1s are 2 and 2 3s are 6. Means you can get 3a square. Understood? Hello. Yes sir. Yes sir. Here 3 by 2. So you cannot divide this 3 by 2. So you can get as it is 3a by 2 या 3 by 2a ऐसा भी लिख सकते हो आप. माइनस यहाँ कट जाएगा, 2 2 cancel means you can get only 1. So this is your answer. Understood? So write down. Yes sir. Write down this. After this you have to write this one. This step. This is the last step. दादू. No talking. Who is talking? सर कैमरा नीचे करो थोड़ा. क्या? कैमरा थोड़ा कुछ नीचे नहीं, करो. कैमरा लास्ट को हाथ कैमरा लगाओ, सर. डिस्टर्ब हो जाएगा. नहीं सर बराबर है. ओके. यार नीचे का कट रहा है. हाँ सर, ये जानवी को चश्मा लगा इसको, इसलिए उसको दिखता. बात ज्यादा बातें मत करो. जो पूछा है उतना ही जवाब देना है. ओके, नाउ लिसन हियर. राइट डाउन द नेक्स्ट हेडिंग, दैट इज मोल डिवीजन. मोल डिवीजन. राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग, मोल डिवीजन. सर वो क्या लिखा है क्लियर नहीं दिख रहा है. कौन सा? नीचे का सर. 6a square by 2. लिसन नीचे हियर. का कट रहा है. ये नहीं दिख रहा क्या? हेलो. हाँ सर ये बोलो है सर आप. 6a square by 2 हाँ plus 3a by 2 हाँ minus 2 by 2. ठीक है. ओके, अभी मैंने डिवाइड किया 2 से. 2 1s are 2 and 2 3s are 6. तो आंसर आया 3a स्क्वायर, जो यहां लिखा है 3a स्क्वायर. ओके, यहां एज इट इज लिखा 3 by 2a माइनस ये दोनों कट गए 2 by 2, तो आंसर आता 1. वो यहां लिखा है.
Understood? यस सर. Okay, write down. Yes, sir. सर हो गया. Write down more division. Next heading, more division. More division. See here, what is in more division? इतना डिवीजन पढ़ने के बाद भी और मोर डिवीजन है. व्हाट इज इन मोर डिवीजन? समथिंग डिटेल is given in this more division. Okay, so see here, direct we will start this exercise. Exercise 6E, page number 82. Open it. Page number 82. Page number 82. Exercise 6E. Write down first question. Simplify. Simplify. Write down this. X square plus 7x plus 10 divided by x plus 5. See here. X square plus 7x plus 10. First problem. X square plus 7x plus 10 divided by x plus 5. Okay. Solution. You can write this problem like this: x square plus 7x plus 10 divided by x plus 5. Okay, आप ऐसा लिख सकते हैं, x square plus 7x plus 10 divided by x plus 5. Now see here, can you take out any common? Hello, can you take out X. any common? X. Yes, sir. X is common in three terms, 1, 2 and 3. इसमें कहाँ x है? This is constant. This is constant, so you cannot take out x as a common or any number as a common. So that time what we have to do here? I already explained you one of the method in in first term exam. One of the problem was there that I told you, splitting the middle term. Do you know that one? Splitting the middle term. हम middle term को split करते हैं. Equation. Why, for what we have to do this process or method? For finding the factors. For finding the factors. हमें factors find करने. First you have to find the factors of this number. This x square plus 7x plus 10. Okay. For finding this factor. Again मैं आपको वही method आपको फिर से explain करूंगा. आप अच्छे से ध्यान दो कि how to find the factors of this one. How to split the middle term. Okay, now listen here. Suppose your problem is like this: x square plus 7x plus 10 divided by x plus 5. So you have to split this term, this middle term. Middle term is what? 7x. So you have to split the 7x. किस तरह से split करेंगे? Split करना means what? What we have to do here? You have to do the divide it into two parts. इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, जिसकी सम इतनी आनी चाहिए 7x. जैसे 1x plus 6x, 2x. देखो 2x plus 5x कितना होता है? 7x होता है. 3x plus 4x वो भी 7x होता है. अगर मैं इसके देखो 7x को अगर मैं ऐसे लिखता हूँ 2x plus 5x, तो क्या ये 7x होता है? हाँ. हाँ सर. 7x है नहीं, ये हाँ, भी तो सर. होता है. आप कहोगे सर 3x plus 4x भी होता है. ये नहीं होता 7x? होता है ना? होता है सर. और भी होता है 1x plus 6x भी होता है. लेकिन इनमें से लेना कौन सा है हमें? ठीक है, इनमें से लेना 2x कौन plus सा है? 5x. कौन सा लेना है हमें? जिन नंबर का, जैसे मैंने यहाँ 2 लिया, 2x यहाँ 5 लिया, plus 5x. तो इनका प्रोडक्ट जो है ये टर्म आनी चाहिए, लास्ट वाली कांस्टेंट. तो इनमें ही प्रोडक्ट 10 आता है. इसमें आता है क्या? 4 3 3 into 4 करे तो क्या आता है? 12 आता है. 12 है क्या यहाँ पे? नहीं नहीं. सर. अगर यहाँ 12 होता तो ये लिया रहता मैं. हेलो, अगर यहाँ 12 होता तो मैं ये लिया रहता. यहाँ 10 है तो मुझे ये लेना पड़ेगा 2x plus 5x. ओके, हेलो. Yes, sir. हाँ अब सर. देखो मैं यहाँ हाँ, कैसे sir. लिख रहा हूँ? x square. So I am splitting this middle term 7x. Place of 7x I am writing here 2x plus 5x. Can I write like this? Plus 10. Yes, sir. Yes. ऐसे लिख सकता हूँ मैं. देखो 7x को मैंने ऐसे लिखा 2x plus 5x. बाकी x square as it is, इसको स्प्लिट किया, 10 भी as it is है. नीचे वाला नंबर x plus 5, this also as it is. सिर्फ इससे मैंने ऐसे लिखा. तो 2x plus 5x means 7x है. ओके, हेलो.
सर सर इतना हाँ, आई समझ हैव में अ क्वेरी। इतना समझ में आया? नहीं सर, हाँ सर सर हाँ एक यस क्वेरी है। यस बोलो ना। 5x प्लस 2x नहीं कर सकते क्या? कर 2x सकते प्लस आप 5 5x की प्लस 2x जगह। भी लिख सकते हो, दैट डिपेंड्स ऑन यू, आपके ऊपर डिपेंड है। 5 प्लस 2x लिखो। हेलो, सर सर नहीं सर, सर चलेगा चलेगा, आप कुछ भी कर लो। लिख सकते हो, सर आपके ऊपर डिपेंड करता है। 5 प्लस 2x लिखिए सर या 2x प्लस 5 लिखिए। सर यस, सर आपने 10 को स्प्लिट क्यों नहीं किया? 10 को नहीं करना है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, तो आपको मिडल टर्म को ही स्प्लिट करना है। 10 को स्प्लिट करने से कोई फायदा नहीं होगा, या फिर 10 को स्प्लिट करने से आपका आंसर भी नहीं आएगा। सर जब अगर हम वहां पे 4 डिजिट होंगे तो, हाँ, अगर वहां पे मतलब 4 कांस्टेंट 4 होंगे तो नंबर्स, तो कहाँ पे यहाँ 4 नंबर होंगे तो टर्म टर्म सॉरी 4 टर्म रहेंगे, तो वो अलग तरीके से करना है फिर प्रॉब्लम। ठीक है सर। तो यहाँ पर क्यूब आएगा। सर अगर वहां, कंटिन्यू करो। अगर यहाँ 4 टर्म है, लिसन हियर, इफ देयर आर सपोज 4 टर्म्स, तो यहाँ पर क्यूब आएगा। वो मैंने आपको उस दिन बताया था। अगर पावर 2 रहा तो नंबर ऑफ टर्म्स एक ज्यादा रहती, मतलब 3 रहते। वो तो मैंने स्प्लिट करके इसको 4 टर्म में कन्वर्ट किया है, लेकिन इसको सॉल्व करेंगे तो 3 ही टर्म है एक्चुअली, ये वाले, ये 3 टर्म है। ओके, हाँ सर हाँ तो सर जब तू कह रहा है कि 4 सर टर्म है, तो यहाँ पर पावर भी अलग आएगा, वो अलग तरीके से सॉल्व होते प्रॉब्लम। ठीक है सर। फिलहाल हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख रहे हैं। ओके, सो सी हियर, सो दिस विल बी इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर जो मैंने 4 टर्म बनाए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10 डिवाइडेड बाय x प्लस 5। नाउ यू हैव टू मेक द पेयर्स ऑफ टू नंबर्स, टू टर्म्स। तो इन दोनों की एक पेयर बनेगी और इन दोनों की एक पेयर बनेगी। ओके, हेलो, यस सर दो नंबर की पेयर बनाना है। हाँ आफ्टर सर। मेकिंग द पेयर, व्हाट यू हैव टू डू हियर, यू हैव टू टेक आउट द कॉमन फ्रॉम ईच पेयर। अब इस पेयर में से कॉमन निकालना है, तो क्या कॉमन है? हु कैन टेल मी? x x वेरी गुड, x इज अ कॉमन नंबर। X यहां से एक x निकला, यहां मिनिमम पावर 1 है ना x का, यहाँ पे 2 है, तो मिनिमम पावर आपको निकालना है। तो यहां से एक x निकला, तो यहां पर एक x बाकी है। ओके, हेलो, यस सर हाँ सर। प्लस x निकल चुका है, यहां से एक ही x था वो निकल चुका है, तो क्या है यहाँ पर? 2 प्लस, can you tell me again what we have to common from among these two terms? 5 pi as a Five. common, very good। आयु अब क्या रहेगा ब्रैकेट में? x प्लस 10 यहाँ से देखो x फाइव निकला है, ये फाइव, प्लस ये टू, देखो ये फाइव x निकला प्लस है, टू। तो यहाँ x है। तो किसी के घर से आवाज आ रही? प्लस 2 हेलो, किसी के घर से आवाज आ रही? म्यूट हो जाओ। सर आकांक्षा आकांक्षा, हेलो, see here, suppose if you take out 5 as a common, so remaining numbers you have to write in bracket, that is x, और यहां से 5 निकला है। 10 का मतलब क्या हुआ? 5 into 2 है ना, तो आपने 5 को निकाले तो 2 बचा है यहाँ पर। ओके, हेलो, यस हाँ सर। इतना समझे क्या? हाँ सर सर। इसलिए तो मैंने हाँ सर। इतना समझ में आया? समझ गए। तो एक बात याद हाँ रखना सर। आप, हमेशा जो यहां मिलता है ना, ये जो ब्रैकेट मिलता है वही ब्रैकेट यहां मिलता है, इसे ध्यान में रखना, समझे? जो हाँ, सर। ब्रैकेट हाँ सर। पहले मिलता वही ब्रैकेट नेक्स्ट टाइम भी मिलता ही है। अंडरस्टूड? सर अब वो डिवीजन वाला कहाँ पे गया फिर? x प्लस 5। ये ना, तो ये लिख रहा हूं ना मैं अभी नीचे, इसको लिखूंगा ना, इसे थोड़े ना छोड़ना है। x प्लस 5, ओके। मेरे ख्याल से आप यहां तक लिखो, क्योंकि नीचे लिखूंगा तो दिखाई नहीं देगा। राइट डाउन। सर सर लिख लिया। सर हो गया मैं ऊपर का इरेज, ऊपर का इरेज करूं? हाँ हाँ सर सर। हाँ सर। सी यार, मैं ऊपर लिख रहा हूं अभी। ये थोड़े प्रॉब्लम बड़े लगेंगे आपको, लेकिन एक बार अगर आपको प्रैक्टिस हो गई तो कुछ भी हार्ड नहीं है। नहीं सर, बहुत इजी है ये तो। सर प्रॉब्लम बड़े हैं लेकिन सर easy है, लीजिए कुछ मेरे हार्ड नहीं है। किया तो हाँ सर। स्टेप लॉन्ग है, हाँ, एकदम इजी है। नाउ लिसन हियर, ओवर, यस हेलो सर हाँ सर। सी हियर, नाउ x into x plus 2 plus 5 into सेम नंबर x plus 2। अब ये एक नंबर हो गया और ये दूसरा नंबर हो गया, ठीक है? हेलो, हाँ सर
अब हाँ इन सर। दोनों में कॉमन क्या है? व्हाट इज द कॉमन? एक्स एक्स प्लस टू x plus ये 2 ब्रैकेट कॉमन रहता हमेशा। x देखो plus 2 हमेशा याद रखना, मैंने कहा था ना सेम ब्रैकेट आपको यहाँ मिलेगा, तो वही ब्रैकेट कॉमन रहता हाँ है। सर। देखो यहाँ पर x प्लस 2 है, यहाँ पर भी x प्लस 2, ये एक नंबर है, ये दूसरा नंबर है, दोनों में कॉमन x प्लस 2 है, तो उसे कॉमन निकालो x प्लस 2 को। अंडरस्टूड? हेलो? हाँ यस सर। सर। हाँ और हाँ ब्रैकेट सर। में अब बचेगा ये x प्लस 2 निकला, तो यहाँ से सिर्फ x बचेगा, प्लस है तो प्लस साइन देंगे, यहां से x प्लस 2 निकल चुका है, यहां सिर्फ बचा है 5। ओके? यस सर। और हाँ नीचे सर। का नंबर x प्लस 5 है ही ऑलरेडी। हम्म, अब इन दोनों ब्रैकेट में इंटू साइन है, अब ये नंबर कैंसिल हो सकते हैं, और अब आपका आंसर रहेगा x प्लस 2। हाँ सर। दिस इज योर आंसर। अंडरस्टूड? यस सर। नहीं सर, नहीं समझ समझ में आया। हाँ सर। ये नीचे का हाँ नंबर हमें सर। लाने के लिए ये सब मेथड सर। करनी पड़ेंगी। इस तरह का एक नंबर आपको मिलता है, तब जाके सर ये सर इसके साथ कैंसिल होता है, मेथड और से रिमेनिंग क्या नंबर्स चलेगा आर द क्या? आंसर। ठीक है? x प्लस 2 इज द, हेलो सर। सो राइट डाउन दिस। यस सर। सर नहीं समझा, फिर से समझाओ ना। ठीक है, मैं सर। आपको दूसरा प्रॉब्लम समझाता हूँ इसके जैसा, आप इसे लिख सर। लीजिए, तो समझाने में अपना दूसरा एक और प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है? राइट डाउन दिस। तो सर सर हाँ बोलो। हाँ सर एक माइनस वाला समझा के दो। हाँ ठीक है, माइनस। अब ज्यादा से ज्यादा क्लास अटेंड करो, इसलिए कि आपके अगर कोई प्रॉब्लम्स रहे तो वो यहीं पे सॉल्व हो जाएंगे। सर बी या फिर डी में से बताओ। ओके, सो आई विल एक्सप्लेन यू विच वन, सी और बी। सर दोनों में से कौन सा भी समझा दो। अब सी लेते सर हैं, प्रॉब्लम सी, दो सर माइनस। बी बी हाँ जी सर। सर बी बी। आएगा। सर ई वाला, सर ई सर ई ई ई नहीं, जी लेते हैं, बहुत बड़ा है ना? देखो सर कुछ प्रॉब्लम भी सी एंड प्रॉब्लम ई दोनों सेम ही है, सी और ई एक जैसे है, दो निगेटिव साइन है वहां पर। अच्छा, टेक्स्ट बुक की आपको डिवीजन मेथड करनी है। ओके ओके ठीक है, तो वो भी आपको बता देता हूं मैं, टेक्स्ट बुक में क्या मेथड है। ठीक है, एक टेक्स्ट बुक की मेथड लेते हैं। कौन से क्वेश्चन के लिए लेंगे? सी के लिए। सी लिखिए, क्वेश्चन सी। Okay, so write down question C. P square minus 7p minus 18 divided by p minus 9. Write down this. Over this problem. Hello? यस सर। Okay, write down question C. What is the question here? P square minus 7p minus 18. P square minus 7p minus 18 divided by डिवाइड पी माइनस 9। minus 9. ऐसे दिया है, p square सर minus पी 9. स्क्वायर Sorry, नहीं, p minus पी 9. स्क्वायर p minus 9. Okay. Okay, see here. तो हम डिवीजन कैसे ऐसे सॉल्व करेंगे इसे, क्योंकि डिवीजन है, तो यू कैन राइट हियर लाइक दिस, लॉन्ग डिवीजन मेथड। p square minus 7p minus 18 divided by p minus 9. p minus 9. Okay. Who is talking? 12th होऊनच मग ते त्यांचं एज्युकेशन नागपूरमध्येच झालं 12th पर्यंत. सर आर्यन ढोले। आर्यन डोंगरे? आर्यन सर डोंगरे? डोंगरे नहीं सर डोले। हाँ जो भी है, नो टॉकिंग। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, मैं आपको डिवीजन मेथड बता रहा हूँ, लॉन्ग डिवीजन मेथड से।
वो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म है और ये डिवीजन मतलब लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब इससे कैसे डिवाइड करते हैं? आप सोचोगे कि यहाँ पर कोई नंबर दिख नहीं रहा है, यहाँ पर भी 2 टर्म्स है, यहाँ पर भी 3 टर्म्स है। हाउ टू डिवाइड दिस नंबर? ओके, नाउ सी हियर, p square p minus 9, you have to divide this number p square minus 7p minus 18 by this p minus 9। तो अब देखिए यहाँ पर किससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ के नंबर्स मिलेंगे। दिस इनटू हाउ मच इज इक्वल टू दिस वन, ठीक है। तो पहला नंबर देखिए यहाँ p है, यहाँ पे p स्क्वायर है, तो यहाँ p स्क्वायर लाने के लिए इस p को इंटू करना पड़ेगा, मतलब p minus 9 को इंटू करना पड़ेगा। किससे? p से इंटू करेंगे, ठीक है। देखो ये p minus 9 जो है इसको हमें p से इंटू करना पड़ेगा, तब जाके ये क्या आएगा, p इंटू p स्क्वायर माइनस 9 इंटू p 9p ऐसे हो जाएंगे। समझ में आ रहा है आपको? हेलो, हाँ सर। p से इंटू करूंगा, देखो हाँ सर। p से इंटू करूंगा तो p इंटू दिस, तो p इंटू दिस मैंने रफ में किया, p इंटू देखो p माइनस 9, p इंटू p स्क्वायर माइनस p इंटू 9 9p, ठीक है। तो p से इंटू करूंगा, p माइनस 9p जार p स्क्वायर माइनस 9p ऐसे होगा। अंडरस्टूड? Understood this one? Now, नो सर, Yes, सर एक बार what is the समझा next के step? दो। हाँ? और सर एक बार रिपीट करो। सर फिर से समझाओ। So you have to divide this term by this p minus 9, ठीक है। तो अब यहाँ किससे p minus 9 1 जार p minus 9 होता है, p minus 9 2 जार p minus 18 होता है, या 2p minus 18 होता है। अपने को ये वाली टर्म लानी है, मतलब ये फर्स्ट जो है, फर्स्ट p स्क्वायर, इसको लाना है यहाँ पर, ये याद रखना, ठीक है। 1 जार 2 जार 3 जार 4 जार इंटू नहीं करना है आपको। हाँ सर। आपको ये जो पहला p स्क्वायर है, p स्क्वायर लाने के लिए इसको किससे इंटू करना पड़ेगा वो देखना है। ओके, तो p स्क्वायर लाने के लिए इस p को p से इंटू करना पड़ेगा। तो एक ही p को नहीं, p माइनस 9 दोनों है, तो दोनों को इंटू करना पड़ेगा। देखो मैंने रफ में इंटू किया है, p माइनस 9 को p से इंटू किया, तब जाके p जार p स्क्वायर माइनस p इंटू 9 9p, ठीक है। ये नंबर मिला, तो ये नंबर यहां लिखना, p स्क्वायर के नीचे p स्क्वायर, 7p के नीचे 9p, लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म आने चाहिए, लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म आने चाहिए। ओके, हाँ सर। हाँ, तो ये Yes, sir. ये p से इंटू करने के बाद आया। अब देखो डिवीजन में हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो सब्ट्रैक्शन करते वक्त साइन चेंज होते हैं, ये बात भी आपको याद रखनी है। हेलो, यस ठीक सर। है। डिवीजन में हाँ, हम सर। सब्ट्रैक्शन करते हैं, सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज होते हैं। इसका साइन निगेटिव है तो ये पॉजिटिव बनेगा, ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव बनेगा। तो वैसे भी हम निगेटिव साइन देते ही है, यहाँ पर देते हैं ना, जब भी हम डिवीजन करते हैं तो, और हाँ, सर। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ हाँ, सर। देखिए, ये तो p माइनस p 0 कट गया, ये 0 यहाँ कट नहीं कट किए तो चलेगा, या 0 लिख भी सकते, नहीं लिखे तो भी चलेगा। इसको सॉल्व करो, तो यहाँ प्लस 7p सॉरी माइनस 7p प्लस 9p, 9 माइनस 7 सर 2p। 9 माइनस 7 2p. 2p, ओके। हेलो, यस सर। माइनस Yes, 18 एज sir. इट इज, माइनस 18 एज इट इज, ओके। अब यहाँ से कुछ Yes, कॉमन sir. नहीं निकालना, यहाँ 2 कॉमन निकलता है, वो निकालना नहीं है। अभी देखो हाँ ये नंबर लाना है हमें, इसको किससे इंटू करूँ तो ये नंबर आएगा, पहला वाला 2p आना चाहिए। 2 से इंटू इंटू। करूँ इसको, सर 2 से सर 2 2 से इंटू Two, करूंगा तो ये two. 2p होगा, 2 2 से। 9 18 हो जाएगा। तो कौन सा 2 हाँ। चाहिए, पॉजिटिव, प्लस 2 करूंगा मैं, प्लस 2 से इंटू करूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो 2 से इंटू करूंगा p माइनस 9 को रफ में करूंगा, आप देखिए 2 इंटू p यानी 2p माइनस 2p 9 2 जार 18, ठीक है। इस तरह हाँ, से नंबर sir. मिलेगा मुझे, मैंने प्लस 2 से इंटू किया तो मुझे ये नंबर मिल रहा है 2p माइनस 18, ये मिला, ठीक है। अब सब्ट्रैक्शन होता है तो साइन चेंज होते हैं, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस का, ये प्लस है कुछ नहीं, मतलब ये भी माइनस होगा। तो 2p माइनस 2p कट गया, माइनस 18 प्लस 18 ये भी कट गया, मतलब 0 आंसर आ गया, 0 प्लस 0 यानी 0 हो गया। मतलब हाँ। आपका आंसर ये है, ये क्वोशंट इज द आंसर, p प्लस 2, आप चेक कर लीजिए आंसर, p प्लस 2 इज द आंसर। ये लॉन्ग डिवीजन मेथड, दैट डिपेंड्स ऑन नहीं यू व्हिच समझा। मेथड यू हैव टू अप्लाई हियर, सर नहीं सर। समझा। ठीक है। देखो एक बार ये वाला और सर नहीं समझा। ठीक है, फिर से समझाता हूं मैं, ज्यादा टाइम नहीं है अभी अपने पास, ठीक है। सर कोई अच्छा प्रॉब्लम समझाओ। एक और लेते हैं सर problem। वो पहले नहीं वाली सर में यही थी। प्रॉब्लम समझाओ। हाँ, एक काम सर, करो, ये वाला हेलो नहीं हेलो, समझा। एक काम करो, ये लिखो फटाफट या स्क्रीनशॉट ले लो, मैं दूसरा प्रॉब्लम समझाता हूँ इसी मेथड सर, ये वाला बताओ। इसी मेथड से, ठीक है। इसी मेथड से दूसरा प्रॉब्लम लेंगे, हो गया।
हाँ हाँ सर सर ठीक है, इरेज करूं? हाँ सर। ठीक है, सर एक मिनट, सर राइट साइड का मत मिटाओ। वो रफ मेथड है, वो लिख के रखना है साइड में आपको, तो जल्दी समझ में आता है उससे कि हम क्या कर रहे हैं करके। जब बहुत प्रैक्टिस हो जाती तो उसकी जरूरत नहीं पड़ती, ओरली कर सकते हैं। ओके, ओवर। यस यस सर। सर नाउ Yes, लिसन sir. हियर। यस सर। सर वो भी मिटा दो अभी। कौन सा लेंगे प्रॉब्लम? सर वाला ई लो ई लेते हैं, ठीक है, लिखो ई। मैं डायरेक्ट यहाँ ई लिखता हूँ, पी स्क्वायर माइनस पी माइनस 6। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिखूंगा यहाँ पर पी स्क्वायर माइनस पी माइनस 6 डिवाइडेड बाय पी माइनस पी माइनस 3। ठीक है, पी माइनस 3। नाउ लिसन हियर, मुझे यहाँ पी स्क्वायर चाहिए, इसको किससे इंटू करूँ तो पी स्क्वायर आएगा? पहला वाला देखना, दूसरा नहीं देखना है। पी स्क्वायर चाहिए, किससे इंटू करूँ? पी माइनस 3 को पी से पी से इंटू करूंगा। ठीक है, ये रफ में करता हूँ, पी इंटू पी माइनस 3 कितना था? पी पी इधर पी स्क्वायर माइनस 3p ऐसे मिलेगा। हेलो हर्षली, यस सर। हेलो, हाँ सर बोलो। डिवाइड किया? समझ में आया अभी? ये स्टेप समझ में आई? हेलो, नहीं। भाई क्या क्या करना है? हाँ, यहाँ सर। पी स्क्वायर है तो आपको इसको कैंसिल करना है, तो सेम नंबर मिलना चाहिए यहाँ पर, सेम नंबर मिलना चाहिए ना। हम वैसा ही देखते ना, 10 है तो यहाँ 2 से डिवाइड करने क्या करेंगे? 2 5 10, तभी जाके ये 0 होगा ना। 10 ही आना चाहिए ना, तब जाके 0 होगा। तो यहाँ पी स्क्वायर ही आना चाहिए, तो पी स्क्वायर लाने के लिए इसको इंटू करेंगे तभी ये मिलेगा, इसको इंटू करेंगे तभी ये मिलेगा। करना पड़ेगा आपको, पी से इंटू करना पड़ेगा। ठीक है, तो पी से इंटू किया मैंने रफ में, देखो तो पी से इंटू इसको ही करेंगे क्या? 2 नंबर है तो दोनों के इंटू करेंगे। पी से दोनों को इंटू किया तो पहला नंबर ये बना, दूसरा नंबर ये बना, मतलब p माइनस 3 p जार p स्क्वायर माइनस 3p, ये नंबर मिलेगा आपको। ठीक है, अब माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस का माइनस हो जाएगा। p स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, ये तो पहला नंबर कट गया, 0 हो गया। नो नीड टू राइट 0 हियर, जरूरत नहीं। दूसरा देखो आप, प्लस 3 माइनस 1 है तो प्लस 2p होता है, और ये माइनस 6 एज इट इज आएगा। ये आपको आता है ना? हाँ 3p माइनस 1p हाँ, सर, 2p, 3p माइनस हाँ, 1 सर। 2p माइनस 6 एज इट इज। ओके, अब आपको क्या करना है? ये पहला नंबर देखो, दूसरा मत देखो। 2p लाना है, अपने पास p माइनस 3 है, p माइनस 3 1 जार अगर करूंगा तो p माइनस 3 ही होगा, आंसर बदलेगा। यहाँ पे कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं होता, मल्टीप्लाई बाय मुझे यहाँ 2p चाहिए तो p को किससे इंटू करो? 2 2 से 2 से, तो मतलब p माइनस 3 को ही 2 से इंटू करना पड़ेगा। p माइनस 3 दोनों को 2 से इंटू करना पड़ेगा, एक को नहीं कर सकते। 2 से इंटू करूंगा तो ये बनता है 2 इंटू p 2p माइनस 2 3 जार 6, देखो प्लस 2 से इंटू किया मैंने p माइनस 3 को, तो वो आंसर मिल रहा मुझे 2p माइनस 6। अब ये प्लस होता, ये माइनस होता, ये भी कट गया, ये भी कट गया, मतलब 0। 6 माइनस 6 प्लस 6 माइनस 6 0 प्लस 2p माइनस 2p 0 0 प्लस 0 0। तो आंसर इज व्हाट? p प्लस 2। जो आंसर इज आप इसके आगे लिख देना, वो जो आपने लिखा है ना, p स्क्वायर माइनस p माइनस 6 बाय p माइनस 3 इज इक्वल टू p प्लस 2। ये आंसर लिख दीजिए बाद में, ठीक है? हेलो, हाँ सर। अभी समझा क्या? हाँ सर। हाँ तो सर। आपको इसकी प्रैक्टिस करनी हाँ, सर। पड़ेगी। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म ठीक लग रहा है या ये ठीक लग रहा है आपको? सर वो स्प्लिटिंग सर ये वाला स्प्लिटिंग वाला ही अच्छा है। हाँ, हाँ सर सर। ये थोड़ा एडवांस नहीं है क्या? आपको जो ठीक लगे आप वो मेथड अप्लाई कर सकते हो। सर ये थोड़ा एडवांस नहीं है क्या? सर ये